Today I am going to discuss how to convert primal linear programming problem to dual linear programming problem. I have already uploaded one problem on this topic, the basic concept of conversion from primal to dual. You please check that, then it will be better and will be easy to understand this problem. Okay, now I'm going to start. First, the standard linear programming problem. The standard form of the linear programming problem is this. First of all, I'm taking the maximization problem. The standard form of linear programming problem. Suppose maximize z is equal to cx. This is objective function. Wave means objective function. This is standard form of linear programming problem. Suppose this is the primal. I am discussing the primal. How will convert to dual, that I will discuss in this part. Dual. The objective function is maximize z is equal to cx, subject to ax less than is equal to p and x greater than is equal to 0. A is a matrix, C is also a matrix, and this is the constants. That is in the form of matrix. The standard form of a primal linear programming problem is this. Then what will be the dual of it? In the matrix form of first writing, then I will discuss through an actual or practical example. The dual will be, in place of maximize, it will be minimize. New function z star is equal to this matrix to be transposed b dash and a new variable is to be taken w, and subject to this A matrix will be transposed A dash new variable w. In place of less than is equal to, it will be greater than is equal to. In place of b, it will be c dash, that is the transpose of this matrix, and w greater than is equal to 0. This is the dual problem in a matrix form. Now, if the standard form of the linear programming is a minimization problem, then objective function minimize, I'm taking a minimization problem. If the problem is minimization, then how the dual will be, that I will be shown here. Minimize, say z is equal to, same problem, cx, and subject to ax. In place of less than is equal to, it will be greater than is equal to b. This is the standard form of minimization, and x greater than is equal to 0. Then what will be the dual? The dual will be, in place of minimization, objective function will be written maximization. In place of minimization, the objective function maximize z star, the new function, is equal to b dash, transpose of this b dash w, subject to a dash, same a dash w. In place of greater than is equal to, it will be less than is equal to, and c dash. There is a similarities, but only due to minimization and maximization, that will be slightly changed. In w greater than is equal to 0. This is the dual of this primal problem when it is a minimization problem. Then if in your exam, how will solve this type of problem? अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ऐसा देता है एग्जाम में, कन्वर्ट प्राइमल टू डुअल, तो कैसे करोगे, कैसे करना है? तो तुमको ये रूल मालूम है कि द प्रॉब्लम इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, द डुअल विद दिस. ये सब मैट्रिक्स है. सी इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स, बी इज अ मैट्रिक्स, लाइक दैट. ओके, तुमको क्या करना है, तुम फर्स्ट प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, जैसे भी होगा.
अगर लेस देन इज इक्वल टू, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में लेस देन इज इक्वल टू है, मिनिमाइजेशन फॉर्म में ग्रेटर देन इज इक्वल टू है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, फर्स्ट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है एंड देन यू कन्वर्ट इट टू डुअल विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। समझ में आया? अब मैं एक एक्चुअल प्रॉब्लम लेके दिखाता हूँ। तो स्पेस तो बहुत कम है, इसलिए बेटर यू नोट डाउन इट इन योर कॉपी, हम दिखाते हैं, ठीक है? तो उस समय इस प्रॉब्लम को, इस फॉर्मूला को हमने यूज करेंगे। तो आई एम इरेजिंग दिस, अभी यह नोटेड डाउन, सारा चीज लिख के रखा है, क्योंकि मैं इसको मिटा देते हैं, क्योंकि नहीं तो स्पेस छोटा है, बहुत छोटा है। तो हाउ आई विल सॉल्व इट, तो एक प्रॉब्लम मैं करके दिखा रहा हूँ। ओके, हाउ यू विल solve the problem in your exam. It is very easy, not at all complicated. So थोड़ा methodically करना है। तो problem is given like this. Suppose primal is given is this primal, छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह मैं यूज करूंगा यहाँ, दोनों पार्ट कर लेते हैं, इट विल बी बेटर। primal maximize z is equal to 12x1 plus 15x2 plus 9x3 subject to तो इधर लिखते हैं 8x1 plus 16x2 plus 12x3 less than is equal to 250. Number 1. 4x1 plus 8x2 plus 10x3 greater than is equal to 200, sorry, 10x3 greater than is equal to 80. 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है? नाउ 7x1 plus 9x2 plus 8x3 is equal to 105. 3 नंबर इक्वेशन, और ये भी दिया हुआ है x1, x2 and x3 greater than is equal to 0. This is the primal problem given and you have to convert this to dual. 8 marks. How will you solve it? तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट यू विल नोट डाउन दिस प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर मैं यहाँ से लिखता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्राइमल? प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? मैक्सिमाइज z is equal to cx, मैट्रिक्स फॉर्म, सब्जेक्ट टू ax less than is equal to b और x greater than is equal to 0. This is the standard form of the primal. तो उसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो z is equal to cx, c is a matrix, तब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। तो दूसरा कलर यूज करते हैं, then it will be better for you to understand. इसको मैट्रिक्स को मैं नीचे लिख देता हूँ, 12, 15 and 9. This is the C matrix, C. और x क्या है? जो cx, x1, x2 and x3, हम लोग जानते हैं रो इंटू कॉलम, ये है x, दिस इज x, रो इंटू कॉलम, इसको तोड़ते हैं तो 12x1 प्लस 15x2 प्लस 9x3, ये cx हो गया। नाउ सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म में सारा लेस देन इज इक्वल टू ax लेस देन इज इक्वल टू b, ये एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। या तो सारा लेस देन नहीं है, ये तो ग्रेटर देन है, या तो इज इक्वल टू है। देन हाउ विल प्रोसीड? तो फास्ट इसको सारा लेस देन में बना लेना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज इजी। तो ग्रेटर देन को मैं पहले लेस देन बनाऊंगा। हाउ? सिंपली इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, देन इट विल बी लेस देन टाइप। आई थिंक इट इज क्लियर, लेस देन हो गया। बट सर ये तो इक्वल टू हो गया, देन हाउ विल डू इट? इज इक्वल टू का मतलब है कि इस पर यू कैन ब्रेक दिस इन टू इक्वेशंस, ठीक है? तो मैं जगह निकालने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो मालूम ही है
तो इसको दो इक्वेशन में लिख देंगे, तोड़ देंगे। ये लेस देन इज इक्वल टू 3 और एक 7x1 प्लस 9 एक ही जगह में कर रहा है इसलिए कि स्पेस का लिमिटेशन है, तो लेकिन कॉपी में अलग अलग कर दो। 9x2 प्लस 8x3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 105, ये 4 नंबर। ये ज्वाइंटली 3 और 4 मिलके इज इक्वल टू हो जाता है, क्योंकि ये लेस देन इज इक्वल टू 103 मीन्स लेस देन इज इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो दोनों ज्वाइंटली इज इक्वल टू। तो तुम्हारा सारा लेस देन इज इक्वल टू बनाना है, ये तो नहीं है, तो मैं इसी बोर्ड में ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस यूज कर रहा है। तो कैसे करेंगे फिर, जैसे यहाँ किए थे माइनस लिख के, वैसा ही माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 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 लेस देन इज इक्वल टू माइनस। अब देखो सारा लेस देन आ गया, और x1 मैंने यही लिख रहा है, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, वो तो रहेगा। अब देखो ये सारा कांस्टेंट लेस देन इज इक्वल टू आ गया, इसमें ए मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे मैट्रिक्स में है। तो दूसरा कलर यूज करूँ क्या, एक दूसरा कलर लाल से ट्राई करते हैं, बेटर रहेगा। इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स को मैं लाल से दिखाता हूँ, लाल दिखाई पड़ेगा डोंट को, लाल से दिखाता हूँ। 8 8 माइनस 4 7 माइनस 7, ये कॉलम आ गया। सेकेंड 16 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 9, ये कॉलम आ गया। फिर 12 माइनस 10 प्लस 8 माइनस 8, तो सारा मैट्रिक्स आ गया यहाँ तक तीनों का ये। और ये जो है x1 x2 एंड x3, और ये जो है लेस देन इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 250 माइनस 80 105 माइनस 105, ओके ये हो गया। और x1 x2 x3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू तो रहेगा। तो ये देखो ये ए मैट्रिक्स बन गया, ये x मैट्रिक्स बन गया, और ये b मैट्रिक्स बन गया। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो यहाँ दिख रहा है, सॉरी ए लेस देन इज इक्वल टू बी, जो यहाँ पर दिखाया जाता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब मैं डुअल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने दिखाया पहले, फिर दोबारा लिख देते हैं। इसका डुअल क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज का जगह पर हो जाएगा मिनिमाइज, मिनिमाइज जेड पहले का फंक्शन था, तो इसको मैं नया फंक्शन जेड स्टार्ट कर देता हूँ, इजिकल टू ये ट्रांसपोज बी डैश डब्ल्यू नया वैल्यू सब्जेक्ट टू हमारा ए डैश का मतलब ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी डैश हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है सी डैश हो जाएगा, और थोड़ा जगह बचा के रखते हैं इसलिए डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तुम्हारा डुअल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, जो डुअल का हो जाएगा, और डुअल क्या हो जाएगा, जेड स्टार मिनिमाइज, यहाँ लिख देते हैं मिनिमाइज जेड स्टार इज इक्वल टू बी डैश, और इज बी दिस इज बी, ये बी मैट्रिक्स से था, बी ट्रांसपोज कर देने से ये घूम जाएगा, मतलब ये कॉलम रो हो जाएगा। तो छोटा कर देते हैं 250 माइनस 80 सब एलिमेंट है, 105 ये माइनस 105 बी डैश और डब्ल्यू 4 वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर, W1 1 2 3 4 है, W2 W3 एंड W4 ये हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, क्या हो जाएगा ट्वेल्व का बी डैश, ये W सब्जेक्ट टू ए डैश का मतलब ये घूम जाएगा, रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। तो मैं घुमा देता हूँ यहाँ पर, इसे घुमा देंगे 8 माइनस 4 कॉलम जो था 8 माइनस 4 7 ये माइनस 7
16 माइनस 8, 16 माइनस 8, 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8। तो ये तुम्हारा कॉलम जो है रो बन गया। 8 माइनस 4, 7 माइनस 7। मैं चेक कर लेता हूँ मैं, 9 माइनस 9, 12 माइनस से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये ए डैश हो गया, ए डैश, ये जो है ये डैश कर दिए। तो नया वेरिएबल आ जा रहा है यहाँ पर W, W1, W2, W3 एंड W4, इसी तरह से। और ये तुम्हारा जो लेस देन था ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। डुअल में जो है तुम्हारा ये ग्रेटर देन आ जाएगा। ग्रेटर देन आने के बाद क्या आ जाएगा, यह सी डैश। सी कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज सी, ये सी था। सी डैश मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, रो कॉलम हो जाएगा। 12, 15, 15 एंड 9 ये आ जाएगा। तो ए डैश डब्ल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी डैश, जो ये है यही चीजें यहाँ पर आ रहा है। और डब्ल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो डुअल बन गया। लेकिन हमको इस इक्वेशन में लिखना है, इधर तो जगह नहीं है, पूरा भर गया। तो इट इज़ बेटर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस सारा चीज़ तो ऑलरेडी हम डिस्कस, बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, तो सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं ऑलरेडी बता दिया, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, स्पेस को ले लेते हैं। तो अब मैं डुअल को इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पर, ओके। मीन्स इसको रो इनटू कॉलम करके इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो डुअल क्या आ रहा है, डुअल आ जाएगा मिनिमाइज, यहाँ से इसी को तो नीचे नीचे जाएगा, लेकिन यह तो स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिनिमाइज। मिनिमाइज इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यू कैन से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मिनिमाइज जेड स्टार इज इक्वल टू, दिस इज रो इनटू कॉलम, ऐसा करके लिखोगे ना। तो 250 W1 माइनस 80 W2, 80 W2, 105 प्लस 105 W3 इज इक्वल टू, रो इनटू कॉलम करोगे, माइनस 105 W4। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू, जो इसको तोड़ेंगे अभी, प्लस W जो है रो इनटू कॉलम, दिस इज रो इनटू कॉलम। तो 8 फर्स्ट 8 W1 माइनस 4 W2 प्लस 7 W3 माइनस 7 W4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12। ये मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा डुअल में। नेक्स्ट 16 W1, इसको तोड़ते हैं, माइनस 8 W2 प्लस 9 W3 माइनस 9 W4 ग्रेटर इज इक्वल टू क्या होगा, 15। डुअल का दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। लास्ट, दिस इज 12 W1 माइनस 10 W2 प्लस 8 W3 माइनस 8 W4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9। ये 3 नंबर इक्वेशन हो जाएगा। W1 W2 W3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर ड्यूल। तो पैरेलल था, अगर उसको ड्यूल में कन्वर्ट है तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और रिविजन कर सकते हो। वो क्या है, एक चीज देखोगे, इसमें सारा जगह W3 W4 इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 105 कॉमन लेते हैं तो W3 माइनस W4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर करोगे 7 W3 माइनस W4, यहाँ भी देखो 9 कॉमन जा सकता है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, W3 माइनस W4। एक ही टेबल में कर देता हूँ, तो अलग से कर देता, W3 माइनस W4। इसी तरह से मैं लिख सकते हैं। तो यहाँ लेट, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। दिस W5 इज इक्वल टू W3 माइनस W4, इस तरह से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा,
यहाँ हम जानते हैं W3 greater than is equal to 0, W3 greater than is equal to 0, W4 also greater than is equal to 0, यहाँ W4 भी आ जाएगा, तो W5 तक क्या हो जाएगा, W4 अनरेस्ट्रिक्टेड क्यों, अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब होगा W5 हमने अस्यूम किया W3 माइनस W4 ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो डिफरेंस जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। बोलेगे सर कैसे, मान लो अगर W3 का वैल्यू 4 आता है और W4 का वैल्यू 6 आता है तो क्या हो जाएगा, W4 ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये बड़ा है, अगर ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, मान लो ये 6 ये 4, तो क्या आ जाएगा, W5 पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों सेम होगा, W3 इक्वल टू W4 से कि W3 भी 6 W4 भी 6, तो 0 आ जाएगा, इसलिए W5 जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू 0, सब हो सकता है, दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज अनरेस्ट्रिक्टेड। तो ये करने के बाद फाइनली यू विल राइट योर आंसर, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, क्या लिखोगे, मिनिमाइज, दूसरा कलर से लिखते हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, ब्लैक से, ओके। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा मिनिमाइज, दिस इज आंसर, मिनिमाइज Z स्टार इज इक्वल टू 250 W1 minus 80 W2 प्लस 105, क्या लिखेंगे, ये W3 मैंने W5 अस्यूम किया है, ये W5 न्यू वेरिएबल, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्ट टू 8 W1 माइनस 4 W2 प्लस 7 W5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12, तो इसको मैं 1A लिख देता हूँ, बेटा लगा 1 2 का जगह रिवाइज करके लिखे हैं। सेकेंड 16 W1 माइनस 8 W2 प्लस 9 W5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, ये तुम्हारा 2A रिवाइज करके, और लास्टली 12 W1 माइनस 10 W2 प्लस 8 W5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9, ये तुम्हारा 3A लिख देते हैं, और W1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, W2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड W5 में क्या लिखेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड, दिस इज द आंसर, समझ में आया। तो कोई कठिन नहीं, कोई भी कितना भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड करके देगा, घुमा फिर के देगा, तो यहाँ तो मैं 10 प्रॉब्लम दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ स्पेस इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड, वीडियो अपलोड करना है, बहुत तरह का बात है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम उठा के दिखाया, जहाँ पर हर तरह का चीज़ें है, हमने दिखाया कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सारा लेस देन होना चाहिए, लेकिन मैंने मिक्स करके दे दिया, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इज इक्वल टू है, तो कैसे उसको डील करना है, तो आई हैव डिस्कस्ड। तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगा तो फर्स्ट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई हैव ऑलरेडी शोन, और जैसे स्टैंडर्ड बन जाएगा देन इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसफर टू डुअल। तो डुअल मैंने दिखा दिया किस तरह से करना है, उसमें ट्रांसपोज करके डुअल का जो फॉर्मूला वो दिखा दिया, तो उसमें डुअल पर मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाके करना है, और उसको ब्रेक कर दो तो आ जाएगा। तो इसी तरह से यू कैन ट्रांसफर एनी प्राइमल प्रॉब्लम टू डुअल प्रॉब्लम। सर ये सब करते क्यों है, फ़ायदा क्या है, देखो प्राइमल से डुअल ये बहुत फ़ायदा है। पहली बात है जो इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है प्राइमल डुअल का, ये मैं एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना के रखा है, तो खोजोगे देखोगे मिल जाएगा, वहाँ पर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया से बताए हैं। तो प्राइमल प्रॉब्लम जो है इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्शन करते हैं उसका प्रॉब्लम है, वो प्राइमल है। और डुअल जो बन जाता है वो इन्वेस्टर का साइड से देखा जाता है, प्रॉब्लम वही है लेकिन सोच अलग अलग है। वहाँ पर जो इन्वेस्टर वो सारा रिसोर्सेज को खरीदना चाहता है, तो इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू में जो प्रॉब्लम बनता है वो डुअल है। और उसी में से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड शेडो प्राइस। यहाँ पर मैं उसको चर्चा लाना नहीं चाहता हूँ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है और शेडो प्राइस जो
कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, तुमको इसलिए वो वीडियो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और वहाँ पर सारा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी मैं दिखाया, ऐसा क्यों ड्यूअल ऐसा होता है वो वहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इन दिस वीडियो मेरा मेन पर्पस था, मेरा मेन मकसद था, वहाँ तो केवल इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मुलेशन में दिखाया था। तो आज मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिखाया कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को कैसे मैं ड्यूअल में ले जाता हूँ। इसका अलावा बहुत तरह का इसमें फ़ायदा है, बेनिफिट्स है। जब मैं सिंप्लेक्स अप्लाई करता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के लिए, बहुत तो बार देखा गया है, ऐसा होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है और मैक्स ग्रेटर देन इजिकल करके दिया हुआ है, ग्रेटर देन इजिकल टू करके दिया हुआ कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी तुम्हारा ग्रेटर देन इजिकल टू आएगा वहाँ पर तुम्हारा सरप्लस वेरिएबल आना ही है, ऑलरेडी आई हैव शोन यू। और जब सरप्लस वेरिएबल आएगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लाना है। तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर तुम ट्रांसपोज करके सॉल्व करोगे तब देखोगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सब लेस देन आ जाएगा, लेस देन होने से कुछ नहीं, खाली स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। तो सिंप्लेक्स से उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मौका लगेगा मैं एक करके दिखाऊंगा, लेकिन वो प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दिखाया, एक गेम थ्योरी में भी मैं इसका एप्लीकेशन दिखाया वीडियो में, ये भी देखोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्राइमल ड्यूअल का नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कभी कभी मैंने टेस्ट करने के लिए इसे दिया जाता है, कोई अगर प्राइमल डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देगा उसका हो सकता है कि एग्जाम खत्म हो जाएगा, बट वो ड्यूअल लेके सॉल्व करता है तो उसका जो है टाइम बहुत कम में हो जाएगा। और एक बात इसमें आई वांट टू मेंशन, जो प्राइमल सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एडिशन वेरिएबल जो भी बोलो, ड्यूअल से भी रिजल्ट वही आएगा, कोई फर्क नहीं है, खाली सोच अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग से है। तो इसलिए जब प्राइमल में ही मेरा ड्यूअल का सॉल्यूशन है, ड्यूअल में जब प्राइमल का सॉल्यूशन है तो कोई एक से मैं काम चला सकता हूँ, तो जो आसान पड़ेगा तो यू शुड प्रोसीड फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। वो प्राइमल ड्यूअल का नॉलेज तुम्हारा क्लियर है तो यू कैन अप्लाई। आगे कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्राइमल से शुरू नहीं करते, अगर ड्यूअल से करते हैं तो सिंप्लेक्स में टाइम कम खाएगा और सारा काम हो जाएगा, रिजल्ट भी सेम आ जाएगा। विल गेट टाइम देन आई विल शो इन माय सेपरेट वीडियो। तो इतना सारा बात आई हैव डिस्कस टुडे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए किच नहीं करना है, यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर, रिप्लाई हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा समय है ज़्यादा नहीं है, मौका नहीं है, अगर ऐसा होगा तो मैं करके भी दिखा दूंगा। अगर कोई स्पेशल इंटरेस्ट है किसी टाइप का प्रॉब्लम में, यू नोट डाउन देयर, आई विल गिव योर रिप्लाई, नो प्रॉब्लम। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू एनी प्रॉब्लम, आई कैन शो यू एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे देना, दैट इज़ आगे का मोटिवेशन मिलता है उसी कारण से। तो थैंक यू, आज का लिए इतना ही है। आगे का लिए मैं फिर डिस्कस करूँगा दूसरा प्रॉब्लम लेके, दूसरा नया टाइप भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।